Hello students, welcome back. Today we are going to start the next part of chapter 1 Python revision tour, that is part 1.2. So the topic here is core data types in Python. We have learned in class 11 that there are various data types in Python which has number, none, sequences and mapping. Number data type में आपके आते हैं integer which are the whole numbers, floating point which are the decimal point numbers and the complex numbers which has the real and the imaginary part. And then we have the boolean also which has two values, that is 0 and 1. Then we have a special literal none जिसके बारे में हमने पढ़ा था. It shows the absence of any value. Then we have three types of sequences as the data type, like the string, tuple and the list. And mappings में हमारे पास आती है dictionaries जिसके कि हम key के through value को map करते हैं. So these are the core data types in Python. After that we have the concept of mutability and immutability. Mutability means in same memory address new value can be stored as and when you want, and list and dictionaries are the mutable objects. क्या मतलब है इसका? कोई भी अगर टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल नहीं लिस्ट एंड डिक्शनरी अगर म्यूटेबल होते हैं तो इस केस में उसका क्या मतलब है कि हम वहाँ पे इंडेक्सिंग के थ्रू उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं एंड द न्यू वैल्यू इज स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी एड्रेस. And immutability is just the opposite of that changes cannot be made and they are not stored in the same memory address. And integer, float, complex numbers, boolean value, string and tuple, these are the immutable objects, right? Next we have is expressions. पाइथन में जब हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो इट इज़ अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई ग्रेटर देन लेस देन दीज literals, that is numbers हो, string values हो and variables in an expression is called an expression. अब देखिए इस एग्जांपल में हमारे पास है 2 + 5 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 3. So this 2, 5 and 3, these are the integer literals, and plus and exponential these are the operators. X greater than equal to z, x and z are the variables. Operands, that is greater than and equal to, are the operators. A or B, A and B are variables, or you can say literals, and or is an operator. So these are the expressions. After that we have the Python operator precedence. Python में हमारे पास बहुत सारे operators होते हैं जो हमने last video में देखे थे. Arithmetic operators, relational operators, bitwise operators, logical operators. So इनकी precedence इस तरह से होती है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट. सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस हमारी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर की होती है, फिर हमारी यूनरी, प्लस, माइनस एंड बिटवाइज नेगोशिएशन, देन आर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, मॉडुलस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन टिल और. तो एक किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर सेम आ रहे हैं तो उसको हमें कैसे इवेल्युएट करना है विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिडेंस. मान लीजिए एक एक्सप्रेशन में आपके पास एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर भी है, प्लस और माइनस भी है, तो तीनों में से आप किसे पहले सेव करेंगे? एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को. और अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन में तीन ऑपरेंड्स हैं और तीनों ऑपरेंड्स के बीच में 1 by 1 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इज देयर, लाइक 2 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 3 एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 5, तो दैट इवेल्युएशन विल बी डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. जनरली हम जो इवेल्युएशन करते हैं हम लेफ्ट टू राइट करते हैं, लेकिन अगर आपके एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स होते हैं तो उनकी जो इवेल्युएशन है दैट विल बी डन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. Next we have is type conversions. Whenever we are working in the Python, sometimes the compiler or the interpreter without the programmer's intervention performs the conversion. एक मिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है, पाइथन सारे ऑपरेंड्स को लार्जेस्ट ऑपरेंड के टाइप पे कन्वर्ट कर देता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एक वेरिएबल है c विच इज इक्वल टू 6.0 डिवाइडेड बाय 3. और अब यहाँ देख रहे हैं आप कि जो 6.0 है दैट इज़ अ फ्लोट वैल्यू एंड 3 इज़ एन इंटीजर वैल्यू. और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये मॉडुलस ऑपरेटर जो है इट विल गिव अस द remainder. 3 to the 6, remainder is 0.0. so the value is 0.0 which is a float value. ये कैसे आई? जो हमारे पास दोनों वैल्यूज थी, एक फ्लोट टाइप की और आपकी इंट टाइप की, दोनों में बेसिकली क्या था, एक हमारी जो इंट का डेटा टाइप है वो हमारा छोटा होता है एज कम्पेयर टू द फ्लोट वन. दोनों में से जो लार्जेस्ट हमारा ऑपरेंड रहेगा उसका जो डेटा टाइप होता है दैट इज द रिजल्टेंट डेटा टाइप ऑफ द final value, right? Next we have is the explicit conversion.
सो एक्सप्लिसिट हुआ जो हम एक्सटर्नली करते हैं और इम्प्लिसिट हुआ जो इंटरनली अपने आप कंपाइलर और इंटरप्रेटर करते हैं। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इज़ अ यूज़र डिफाइंड कन्वर्जन, जिससे कि हम एक्सप्लिसिटली ये सिग्निफाई करते हैं कि पर्टिकुलर ऑपरेंड किस डेटा टाइप का होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे दिया b इज इक्वल टू 5.0, इसके बाद हमने क्या दिया इंट b। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो b है इट हैज़ द डेटा टाइप एज फ्लोट विच इज़ 5.0, and if we specify integer function in front of b it will convert it into an integer value। अब जब आप b की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो ये आपको क्या देगा 5। So we have two types of conversions in Python. One is implicit, which is done internally, and one is explicit, which is done externally by the user. Next we have is math library functions. Math module में बहुत सारे functions होते हैं like ceil, cos, exponential, fabs, floor, fmod, log, log10. इसके अलावा so many other functions are there like factorial, power, square root. जब भी आपको मैथ मॉड्यूल के इन फंक्शंस का यूज़ करना है तो आप यहाँ से मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे एंड द सिंटेक्स फॉर दिस इज द कीवर्ड इंपोर्ट स्पेस द नेम ऑफ द मॉड्यूल मैथ। इंपोर्ट मैथ स्टेटमेंट सबसे पहले आपको अपने प्रोग्राम में देनी है। इसके बाद आप नेम ऑफ द मॉड्यूल डॉट फंक्शन नेम और ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट को पास करेंगे एज स्पेसिफाइड बाय द फंक्शन कि वो कितनी आर्ग्यूमेंट्स लेता है। अब यहाँ पे देखिए इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल इज इम्पोर्टेड मैथ डॉट फैक्टोरियल 5, यानी कि फैक्टोरियल फंक्शन की हेल्प से हम 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं विच इज़ अ फंक्शन ऑफ द मैथ मॉड्यूल। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट फंक्शन को यूज़ कर लिया जिससे कि हमारा आंसर 120 आ गया। जनरली हम फैक्टोरियल के लिए प्रोग्राम लिखते हैं तो अब वही काम हम डायरेक्ट फंक्शन से भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको पार फंक्शन लेना है तो मैथ डॉट पार 10,3 मीन्स 10 रेज टू द पार 3 विच इज इक्वल टू 1000। सिमिलरली मैथ डॉट स्क्वायर रूट 10 विच गिव्स यू द वैल्यू एज दिस। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस हैं जैसे कि आपका सील फंक्शन है, वो आपके नंबर को राउंड ऑफ कर देता है टू द लार्जेस्ट वैल्यू। 9.2 विल बी राउंड ऑफ टू 10.0, माइनस 9.8 विल बी राउंडेड ऑफ टू माइनस 9.0। इसी तरह से आपका जो फ्लोर फंक्शन होता है ये सील के अपोजिट काम करता है, ये आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू देता है। 9.2 का आपका हो जाएगा 9.0 एंड माइनस 9.8 का हो जाएगा आपका माइनस 10.0। कॉस इज अ टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट विल गिव यू द कॉस वैल्यू। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये आपका e रेज टू द पावर x एक्सपोनेंशियल ऑफ 1.0 देंगे तो इसकी वैल्यू आपको देगा। फैब्स में इट विल गिव यू द एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव है तो वो भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। एफ मोड में ये आपको दोनों नंबर्स का रिमाइंडर देगा जिसमें दोनों नंबर्स आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रहेंगे। लॉग में इट विल गिव यू द नेचुरल लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर एंड लॉग 10 में इट विल गिव यू द logarithm value of x by base 10. Okay, so this is the way we have to use the math library functions. Then we have the next topic is statement flow control. अब स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स आती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है कंपाउंड स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रहती है जिसे हम एक यूनिट की तरह एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल इफ ए लेस देन 10 प्रिंट ए प्लस 1। तो यहाँ पे ये जो दो स्टेटमेंट हैं प्रिंट ए एंड प्रिंट ए प्लस 1, ये हमारी इस ब्लॉक की दो स्टेटमेंट्स हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, दीज टू आर माई कंपाउंड स्टेटमेंट्स। इसके बाद आपकी होती है सिंपल स्टेटमेंट, जैसे कि आप ऊपर वाले एग्जाम्पल में देख रहे हैं ये दो स्टेटमेंट्स हैं, अगर हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। और अगर हम इसे इंडिविजुअली देख रहे हैं कि प्रिंट ए, सिर्फ एक स्टेटमेंट को हम सिंपल स्टेटमेंट कहेंगे और दोनों को अगर हम एक साथ देख रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट्स। थर्ड आपकी होती है एम्प्टी स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट विच डज नथिंग, और इसमें आपकी पास्ट जो होती है वो एम्प्टी स्टेटमेंट होती है। समटाइम्स इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट समटाइम्स प्रोग्राम के लॉजिक के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड, तो वहाँ पे हम पास्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी होती हैं जिसमें हमारे पास इफ़ की स्टेटमेंट्स आती हैं जहाँ पे हमारी कंडीशंस होती हैं, इफ़ देन कंडीशन देन आर स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है सो दीज टू स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज इट विल प्रिंट नथिंग ऑन द आउटपुट स्क्रीन। सेकेंड जिसमें आप इफ़ एल्स को लेते हैं कि इफ़ द कंडीशन इज ट्रू that block statement will be executed, but if the condition is false the else part will be executed. Same way the third one is there, if the condition is true it is if elif else, it means if we want to give the multiple conditions, फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इस केस में नेक्स्ट कंडीशन को चेक किया जाएगा, जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसके अकॉर्डिंग वट एवर इज द स्टेटमेंट दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड
अदरवाइज एट लास्ट इवन इफ कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो उस केस में आपकी जो लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट है दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड, राइट। सो दीज आर द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसके बाद आती है आपकी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो इफ में जो हमने बेसिकली पढ़े उसमें हमारे पास आए इफ एल्स, देन इफ एलिफ, एलिफ भी बहुत सारे हो सकते हैं एंड लास्ट में आपका इसी में एल्स आ जाता है। और नेस्टेड इफ में क्या होता है कि इफ के अंदर आपका इफ एल्स हो सकता है, एलिफ के अंदर इफ एल्स हो सकता है, या एल्स के अंदर आपका इफ एल्स हो सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ ए लेस देन बी एंड ए लेस देन सी, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो वो दोबारा से चेक करेगा इज दिस बी लेस देन सी। अगर बी भी लेस देन सी है तो लार्ज हो जाएगा सी, एल्स लार्ज इज इक्वल टू बी। अब आप यहाँ देख रहे हैं इस इफ के अंदर भी एक इफ एल्स है, इस एलिफ के अंदर भी इफ एल्स है, और इस एल्स के अंदर भी एक इफ एल्स है। तो जब एक पूरा ब्लॉक एक पर्टिकुलर आउटर इफ या एलिफ या एल्स के अंदर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। देन हमारे आते हैं फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, जिसमें कि आपके पास एक पर्टिकुलर रेंज होती है, स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू। फॉर एग्जांपल, इट इज गिवन फॉर आई इन रेंज 1 to 6, आई इज माई कंट्रोल वेरिएबल, इन इज माई मेंबरशिप ऑपरेटर, रेंज इज द नेम ऑफ द फंक्शन। और हमें ये पता है कि जो रेंज फंक्शन है वो 1 से लेके कहाँ तक जाता है, बेसिकली इट स्टार्ट फ्रॉम 0, लेकिन यहाँ पे हमने 1 दिया हुआ है तो 1 से लेके 1 वैल्यू लेस देन द एंडिंग वैल्यू। तो ये क्या क्या आपको वैल्यू देगा, 1 से लेके 5 तक। आई को हमने प्रिंट कराया, आउटपुट इज 1 2 3 4 5। अगर हम इसी क्वेश्चन को वाइल लूप में देखें तो ये सारी चीज़ें आपको वाइल में स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं। यहाँ से आप स्टार्ट वैल्यू ले सकते हो, यहाँ से आप एंडिंग वैल्यू ले सकते हो। आई इज इक्वल टू 1 वाइल आई लेस देन यू कैन टेक केयर 6। अगर हम इसी प्रोग्राम को इसमें चेंज करें तो यहाँ पे आपके चेंजेस हो जाएंगे, इट विल बिकम 6 हेयर, दैट इज वाई इट विल गिव यू द आउटपुट दैट इज 1 2 3 4 5, right? So this is my output. If I equals to 1, I less than 6, so it will print first I. And here one more thing should be there. Here we have not given the statement that is I equals to I plus 1, so that should also be added, I equals to I plus 1, otherwise the increment would not be there, right? तो हमें एक एक वैल्यू आगे बढ़ा के लिखना है, that is why we have to say I equals to 1. So 1 is less than 6, condition is true, print I क्या हो गया 1, फिर I की वैल्यू होगी 1 plus 1, इट बिकम्स 2, फिर कंडीशन चेक होगा, ऐसे करके आपका आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5। सो फॉर एंड वाइल जो होते हैं, दीज टू लूप्स आर यूज फॉर द इटरेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स टिल द टाइम द कंडीशन इज ट्रू। इसके बाद आती है हमारी जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट्स में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स रहती हैं, ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू। ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है, इट टर्मिनेट्स द करंट लूप, यानी कि करंट लूप को स्टॉप कर देती है एंड जंप्स टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप, उस लूप से बाहर आ जाती है। और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, इट स्किप्स द रेस्ट ऑफ द लूप एंड कॉजेज द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप, यानी कि जहाँ पे भी कंडीशन ट्रू हो जाती है उससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो स्किप हो जाती हैं और नेक्स्ट वैल्यू के लिए जो इटरेशन होती है, जो रिपीटिशन होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, फॉर ए इन रेंज 1 to 4, इफ ए मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, देन इट शुड ब्रेक एंड इट शुड प्रिंट एलिमेंट इज ए। अब देखिए, जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो ए की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या रहेगी 1। चेक करते हैं हम, क्या 1 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है। इट मीन्स क्या, जब मैं 1 को 2 से डिवाइड करूँ क्या मेरा रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा। तो ये ब्रेक तब कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक जो आपकी प्रिंट स्टेटमेंट है वो आपकी चलती रहेगी। अब हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। वी हैव जस्ट कॉपीड दिस प्रोग्राम और हमने इसको पाइथन में ले लिया। here, so let us do the formatting ones. For a in range 1 to 4, if a modulus 2 equal to 0, it should break and print this. else, ये जो आपको else दिख रहा है ये आपका 4 के साथ है। वाइल के साथ और 4 के साथ जो आपके एल्स होते हैं वो तब एग्जीक्यूट होते हैं जब 4 और वाइल की जितनी भी सारी हमारी रेंज दी हुई है, रेंज के लिए जितनी भी वैल्यूज हैं वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो इफ वी से ए मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, ब्रेक और एलिमेंट इज ए, तो यहाँ से हम इन्हें डबल कोट्स को ठीक कर लेते हैं। दिस शुड बी लाइक दिस एंड हेयर ऑल्सो दिस शुड बी लाइक दिस। अब हम इसे एक बार रन करके चेक करते हैं कि व्हाट विल बी आवर आउटपुट।
Now here we have end of the line while scanning still string literal. Here we'll give the value as a, and here it would be like this. यहाँ से हम इसको इस तरह से चेंज कर देते हैं. अब देखिए the output which is coming is, one second. So here we have the statement. This print statement is a part of the for loop, not the if loop. So here we'll run this question and check what is the output of this one, right? सो हेयर द आउटपुट इज कमिंग, एलिमेंट इज 1. अब हम इसको चेक करते हैं कैसे आया. सबसे पहले आपकी ए की वैल्यू रही 1, 1 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0. जब आप 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 ही बचता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स. अब आप देखिए, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपका ये वाला एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि ये एल्स इफ का पार्ट नहीं है, ये एल्स हमारा फोर का पार्ट है. तो इस केस में ये जो ब्रेक कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी. सिंपली आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो आपका आउटपुट आ जाएगा, दैट इज एलिमेंट इज ए, और ए की वैल्यू अभी कितनी है, 1 है. इसके बाद ए की वैल्यू आपकी हो जाती है 2. इसने चेक किया 2 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0. यस, जब हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे उस केस में हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा. यस, तो उस केस में ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वो इस स्टेटमेंट से, इस लूप से बाहर आ जाएगा. हेयर जब वो इस लूप से बाहर आ जाएगा उसके बाद इसके पास नीचे कुछ भी प्रिंट करने के लिए नहीं है. अब ये जो आपका एल्स पार्ट है, आपको लग रहा होगा कि एल्स पार्ट प्रिंट होगा, बट एल्स पार्ट यहाँ पे तब प्रिंट होता जब बाकी की वैल्यू सारी एग्जीक्यूट हो जाती. अभी ए की वैल्यू हमारी 1 के लिए एग्जीक्यूट हुई है और 2 के लिए हुई है. 3 के लिए ये इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक आ चुका है. दैट इज वाई इट विल गिव यू द आउटपुट एज एलिमेंट इज 1. अगर हम इसी चीज़ को कंटिन्यू में देखते हैं, अब आप यहाँ पे देखिए, ये प्रोग्राम हमने सेम लिखा है, बट यहाँ पे हमने सिर्फ एक चेंज किया कि ब्रेक के प्लेस पे हमने क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया. तो कंटिन्यू में हमने क्या समझा था कि कंटिन्यू में उस इटरेशन को वो स्किप कर देगा और नेक्स्ट वाली इटरेशन पे मूव कर जाएगा. तो यहाँ पे हम ब्रेक को हटा के कर देते हैं कंटिन्यू. और अब हम इसके आउटपुट को चेक करते हैं. जब हम इसके आउटपुट को चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, एलिमेंट इज 1, एलिमेंट इज 3, एंडिंग लूप. ये किस तरह से आया हमारा आउटपुट. सबसे पहले ए की वैल्यू हमारी 1 है, 1 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, हमारी कंडीशन हो जाती है फॉल्स. ये कंटिन्यू भी तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी. जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास फोर लूप के प्रिंट स्टेटमेंट है, एलिमेंट इज ए की वैल्यू कितनी है, 1. इसके बाद ए की वैल्यू आपकी हो जाती है 2, 2 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू. तो उसने कहा कंटिन्यू. कंटिन्यू का मतलब है वो इस इफ पे दोबारा जाएगा, इस स्टेटमेंट पे, वो इस प्रिंट स्टेटमेंट पे नहीं जाएगा. तो इसने इस लाइन को, प्रिंट वाली लाइन को क्या कर दिया, स्किप कर दिया. अब ए की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, 3. तो 3 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, कंडीशन हो गई फॉल्स. क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये कंटिन्यू पे नहीं जाएगा, सीधा आपके प्रिंट स्टेटमेंट पे जाएगा और कहेगा एलिमेंट इज 3, क्योंकि ए की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, 3. और इसके बाद 3 के अलावा इसके पास और कोई वैल्यूज़ नहीं है, क्योंकि रेंज 1 से 4 तक दी हुई है, तो ये एग्जीक्यूट कहाँ तक होगा, 3 तक होगा. लास्ट में ये एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि फोर लूप की जितनी भी वैल्यूज थी रेंज के अंदर, दैट इज 1, 2 एंड 3, वो सारी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं. इसलिए लास्ट में हमारी प्रिंट स्टेटमेंट का आउटपुट आ जाएगा एंडिंग लूप. So our output of the continue statement is element is 1, element is 3 and ending loop. तो continue statement क्या कर रही है, जहाँ पे कंडीशन ट्रू है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको स्किप कर रही है और नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर रही है. और ब्रेक में क्या था, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे कंडीशन ट्रू है वहाँ पे वो टर्मिनेट कर जाता है, आगे की वो कंडीशंस लेगा ही नहीं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेक एंड द कंटिन्यू स्टेटमेंट. नेक्स्ट वी हैव इज नेस्टेड लूप. When we talk about the nested loop का मतलब होता है कि हमारे एक लूप के अंदर दूसरा लूप है. सपोज हमने यहाँ पे दिया फॉर i इन रेंज 1 to 6 और फिर हमने दिया फॉर j इन रेंज 1 to i, प्रिंट स्टार एंड इज इक्वल टू स्पेस. फॉर i इन रेंज 1 to 6 यानी कि स्टार्टिंग में हमारी i की वैल्यू कितनी है, 1, और j कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके वट एवर इज द वैल्यू ऑफ i. पहले केस में i की वैल्यू 1, j की भी वैल्यू 1.
तो 1 से वहाँ तक चलना है, तो जिस केस में हमारी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू सेम होती हैं वहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ पाता, बिकॉज रेंज फंक्शन में एक कम वैल्यू तक चलना होता है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगी। फिर आई की वैल्यू आपकी हो गई 2, ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, नेक्स्ट लाइन में आया। इसके बाद आई की वैल्यू आपकी 2 हुई और जे की वैल्यू होगी आपकी 1 से लेके 2 तक। तो 1 से 2 का मतलब लूप कितनी बार चलेगा, एक बार। यहाँ पे आपका आ गया एक स्टार। फिर स्पेस देना है तो यहाँ स्पेस आ गया। अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, आगे है नहीं, इसलिए ये प्रिंट स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो गई। ये प्रिंट स्टेटमेंट आपकी किसका पार्ट है, इस फॉर लूप का। तो यहाँ से आपकी नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ गया हेयर। इसके बाद आई की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 3, तो यहाँ पे आपकी जे की रेंज होगी 1 से लेके 3 तक। तो लूप कैसे चलेगा, फॉर द वैल्यू 1 जे इक्वल्स टू 1 एंड फॉर द वैल्यू 2, 1 के लिए 1 स्टार और सेकेंड वाले इटरेशन के लिए एक और स्टार, तो 2 स्टार आ गए। फिर आपका लूप चलेगा 1 से 4, तो 1 2 3, फिर लूप चलेगा 1 से 5, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से आपका लूप चलेगा एंड दिस विल बी द आउटपुट ऑफ द क्वेश्चन। सो नेस्टेड लूप क्या हुआ, अ लूप इनसाइड एन अनदर लूप, दिस इज नोन एज नेस्टेड लूप। बेसिकली हम नेस्टेड लूप के हेल्प से स्टार पैटर्न के, जो ट्रायंगुलर पैटर्न के और अदर पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं उसको पाइथन में कवर अप करते हैं। So in the next video, I'll meet you again with some question answers based upon this chapter. Thank you. Have a good day.